हेलो एवरीवन, आप सभी को भूमि नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से शुक्र है इस पहल के लिए। शायद बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, इस वीडियो को देखकर लगा। मेरा सवाल सर आर बाल्गी सर आपसे है। आपको हिंदी सिनेमा और दर्शकों ने हमेशा सराहना दिया और हम सभी ने आपके काम को पसंद किया है। अगर आप इस चंद मिनट के वीडियो से हमें इतना मोटिवेट कर सकते हो तो क्या आगे के समय में आप भूमि नमस्कार पर कोई फिल्म लेकर आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास पूरा टैलेंट आपके साथ है, एक प्रोडक्शन आपके साथ है और दर्शक आपके साथ है, तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट पे कोई फिल्म बनाने का सोच रहे हैं आगे चल के? The state of cinema today, you need pan-Indian films, you need masala films for people to come and see it. I think cinema has a, yes, while there is a, you can always kind of communicate a message in cinema, but it has to be in a very different format, it has to be in a different kind of entertainment. But there are many, many other ways. You don't always have to use cinema to kind of promote anything. There are millions of other ways to kind of promote it. And sometimes the message is delivered much better through other mediums than cinema. बट सर एज एन डायरेक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्टर जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं इस काम को, इस कैंपेन को लेकर, ये आपको देखकर कैसा लगा एज एन डायरेक्टर? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब दर्शक मसाला देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम तक वो पहुंच भी रहा है, बट जब एक्टर इस तरीके के कैंपेन्स में इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? No, it's wonderful. I think everybody in this campaign has worked, without any fee, without anything, and just on the request of Mr. Bamla. Everybody's kind of done their best to do this. All of us have kind of put together. So I'm sure there are lots of people in the industry who want to contribute, who want to do a lot of wonderful things for any cause. And environment is one of the most important causes that there is. So I think yes, the industry is very ready to kind of contribute. Great. Thank you so much, sir. Bhumi Namaskar. Thank you, sir. Hi sir, this is Arthesh from Bollywood Helpline. So my question is for Shan sir and Aman sir. So I would like to know from you that how important does a music plays a role in this kind of campaigns? Very often you put a message through a line or through a prose format या आप किताब ही लिख लें, लेकिन म्यूज़िक से क्या हो जाता है कि आपके और भी सेंसेस जो है ना, मतलब आप सिर्फ शब्द है उसके साथ जब सुर जुड़ जाते हैं तो उसमें एक रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज़ की। और जब आप एक जैसे कि अभी गाना तो हो चुका है, अगर ये कोई स्पीच होता तो कोई फ्रेज़ आपके दिलो दिमाग में चलता नहीं, लेकिन अब ये गाना ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं मन में दिलों में तो कर भूमि नमस्कार वो चल रहा है, फ्रेज़ चल रहा है और वो एक सबकॉन्शियस में चले जाती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जब आप एक बात को गाने के ज़रिए कहते हैं तो लोगों की जहन तक वो पहुंचती है और रहती है उसी में। दैट्स व्हाट आई फील। एक्चुअली एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इट्स नॉट माई थिंग, बट मैं आज का एक किस्सा बताता हूँ आपको। आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन कानपुर, माई कज़न। आजकल स्कूलों में जब एनुअल डेज होते हैं ना, आपके पास परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं होता है, बिकॉज वॉट काइंड ऑफ अ सॉन्ग दे कैन परफॉर्म ऑन, करेक्ट? नाउ इफ़ यू गूगल एनी ऑफ आसिफ सर्स एंड नीरज सर्स कैंपेन, if you see Dharti Ka Dil, Tick Tick Plastic, they are the songs which are performed right now. And even to an extent, a brand like ONGC, on their annual days, those kind of age groups, they perform this song. And today morning I spoke to someone, so they were saying, unki niece thi, so they said कि in their school, actually they created a mashup of these two songs which are created by Shan. Dharti Ka Dil and Tick Tick Plastic, the campaigns. No, so we actually got Google 2 years back to gauge the performance of the various campaigns. The most heartening thing out of that was, if I remember the numbers correctly, was 6,500 or 6,700, 65 or 6,700 schools. They had been able to gauge that these songs were getting to, and that is one of the audience that we really want to resonate with, because जैसे किसी ने कहा ना, I mean we don't sort of inherit this planet from our forefathers. We are really borrowing it from our children, so it's really in that same sort of zone. और नीरज, आई एम टेलिंग यू, यू सी इट आफ्टर 6 months, आई एम टेलिंग यू, जो आज ये गाना जो बना है ना, आप गूगल पे जाके देखना, यूट्यूब पे लिखना और देखना इसके कितने वर्जन्स ऑल ओवर पैन इंडिया बन चुके होंगे। इन एवरी स्कूल दिस विल बी अ सॉन्ग टू परफॉर्म एक्चुअली, बिकॉज बचपन से हम बोलते हैं ना, जब बच्चा पेट में होता है तब से उसको अच्छी बातें बताओ। सो दिस इज फॉर द चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट ही इज बीन क्रिएटिंग, दिस इज वेयर द रियल एडवर्टाइजिंग विल गो इन।
you know, क्या करना है for the planet. So music will play an important role there, I think. And over to Aman. Yeah. सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें बोल दी, मेरे पास कुछ रहा नहीं, बट हाँ ये शान भाई ने भी बोला कि जो गाने का मीडियम रहता है वो हमेशा आपके साथ लंबा चलता है. जैसे आपको मैं कहानी बताऊंगा, एक आप हो सकता है भूल जाएं उसको, एक निबंध सुने या ऐसे सुने, बट वही चीज़ जब अगर हम गाने के रूप में गाते हैं उस चीज़ को तो वो लंबा चलता है. तो ये मैसेज आई थिंक बहुत लंबा चलना चाहिए और वही हमारा इनिशिएटिव है.